Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Kajal this side, and I welcome you guys all on my YouTube channel. So finally I'm back with another video. Actually this is not another video because in this video also I'm going to define, I'm going to explain my whole process of interview कि वो कैसा हुआ, because a lots of people now they are asking for the video. Actually I have already uploaded the video but still they are asking for it. Maybe उनको नहीं समझ आया होगा. So yes, I am here with another video with a better explanation. I will try my best to explain you in a better way. Okay, अगर I forgot somewhere in between तो माफ़ कर देना, because it's been so long, like 4 months I guess, so I don't remember exactly कि क्या हुआ था, but obviously it's like the day जो कि कोई नहीं भूल सकता है, right? So yes, without any further delay, let's get started in the video. Okay, इतना excitement हो रहा है ना, because after a long time finally I'm making something for you all. चैनल मेरा फ्रीज हो गया था because of not uploading anything at the time, and whole my in the training period also I was not able to upload any video because you all know, training period it's quite hectic, because when I was preparing for my exams, when I was preparing, when I was in my home preparing for interviews, then I used to think how I'm going to do this, how people are doing, because I want the exact thing what actually happens in the training and whatever I want, every small information. Okay, so I used to comment every girl who was doing the training or something who got selected what was the further process. ठीक है, I always used to do that. पर उसके बाद I got to know हाँ, तो जब मैं अपनी ट्रेनिंग घर पे थी ना, जब आई यूज़ टू गिव इंटरव्यूज़, तब मैं सोचती थी कि कैसे ये लोग क्यों नहीं बना रहे हैं वीडियोस. ठीक है, आई यूज़ टू थिंक कि ट्रेनिंग में है तो क्या हुआ यार, दे डोंट हैव इवन दैट मच टाइम टू अपलोड अ शॉर्ट, क्योंकि मुझे इतना था ना कि मुझे वो चाहिए. बट आई नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉट दे आर फेसिंग थ्रू, वॉट दे आर गोइंग थ्रू, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं. ठीक है, बस मुझे था वीडियो क्यों नहीं बनाते ये लोग. तो आई वाज लाइक व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड देन आई विल गोना मेक आई एम गोना मेक mini vlog every and each day. I will explain everything with my YouTube fam because I was struggling for it. Okay, but when I was in training na, then I got to know it's really not possible to make videos per day, और per day तो छोड़ो, वीक में एक बार भी बनाना, because every day we have exams, every day कुछ नया पढ़ना. नया तो छोड़ दो, इतना सारा कंटेंट इतने कम दिनों में ख़त्म करना. उसके बाद एवरी डे यू हैव टू गिव एग्ज़ाम्स, और उस एग्ज़ाम्स में भी अगर 90 से नीचे आ रहा दैन यू विल फेल. ठीक है, सो आई वॉज रियली वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट, और एवरी वन शुड सब होते हैं. ठीक है, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो भी नहीं वीडियो अपलोड करते थे. तो वो मेरे साथ भी वही प्रोसेस हुआ. आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो, तो मेरा चैनल हो गया था ब्लैंक. और वो इसीलिए हुआ था यार, बिकॉज इन ट्रेनिंग ना इट्स सब इतना पढ़ना पड़ता है, यू डोंट इवन गेट टाइम टू स्लीप यार. व्हेन यू क्या बोलूँ मैं, स्लीप. ओके, बस यही बोलूँगी. इन द ट्रेनिंग इट्स वेरी हेक्टिव. आई यूज टू से इट्स वेरी ईजी, it's not difficult, it's very easy. Everyone is saying it's just a rumor. Okay, I used to say like that only, but trust me guys, it's not tough, really it's not tough, but it's not easy also. If you don't put your hard work now, hard work requires, because every day you are getting इतना content, उसके बाद एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड लाना. So it's quite नॉट डिफ़िकल्ट, बट इट्स फाइन अगर डेली कर रहे हो तो. बट फिर भी टाइम नहीं मिलता सोने के लिए भी. अब तो वी यूज़ टू आई यूज़ टू कि कहीं पे भी बैठ जाओ ना 5 मिनट्स के लिए, तो आई विल सो जाती हूँ मैं, बिकॉज नहीं हो पाता. ठीक है, ओके. सो हाँ, तो आई डिडंट रिमेंबर. हाँ, आई गेस 7th of July, आई गेस, येस 7th of July को आई वेंट फॉर द इंटरव्यू इन लखनऊ में रमाजा होटल में होते हैं. सो आई रमाजा होटल इन लखनऊ. आई होप यू गाइज नो अबाउट इट. तो वहाँ पे होते हैं. तो एट दैट डे ऑल्सो देर आर सो मैनी गर्ल्स. ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइज, गॉड प्रॉमिस, आई स्वेयर,
I am not in the mood at all. Every time I used to go, I was like, now I have to, like, I want selection this time. I want selection this time. I will not gonna take any reason for me that I didn't got selected because of this and that. Okay. But इस टाइम मुझे ऐसा था ना, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, like nothing. क्योंकि I was suffering from fever that day, like hell. इतना ज़्यादा बुखार था, ऊपर से I was not able to speak also. ठीक है. Trust me guys, when क्या बताऊँ, when I was giving my last and final round with the HR now, the final round which is like, which decides that I'm gonna, like, I'm selected or not, okay. In that round what I used to do is, you know what, I was like sitting behind ऐसे, and वहाँ पे HR बैठे थे और उनके चारों तरफ लड़कियाँ बैठी थी, ठीक है. तो मैं थोड़ा सा लेट थी, तो फिर मैं वहाँ बाहर बैठी थी बिकॉज नेक्स्ट राउंड आई हैव टू गो फॉर दैट, ओके. तो आई वॉज लाइक ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली, एंड वो देख रहे थे, ठीक है. दे ऑल वाज सेइंग. उसके बाद आई वॉज लाइक आई एम नॉट गोइंग, लाइक मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक ओनली. देन आई थॉट वो तो सिर्फ बोलने वाला ही राउंड है ना, इट्स लाइक जितना बोलोगी वही है. बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक. मैं एक लाइन बोलती हूँ दैट, सो इट्स मेक समवेयर वेरी, लाइक बहुत अजीब सा हो जाता है ना अगर ऐसे कर रहे हो तो. वॉट दे थिंक, दे डोंट नो ना कि आपको क्या हुआ, बट इट्स नॉट लुक गुड ऑल्सो. और स्पेशली फॉर दिस जॉब ना, स्पेशली फॉर दिस जॉब जहाँ पे फिनिश इज एवरीथिंग. और मैं खू करके आंसर, लिटरली व्हेन ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चन इन द फाइनल राउंड, I was doing and this. And even the third round, which is the most difficult round, which is the communication round, virtual communication round, उसमें दे आज में, चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. मैं तो कुछ और ही बताने लगी. चलो. हाँ यार, मुझे ना पापड़, हाँ इट्स वेरी नाइस एक्चुअली. और तो बड़ा वाला लाए हैं यार, मैं छोटा वाला मैं अभी मैं खा के आई, पर मुझे बहुत भूख लगती है. सो व्हाट हैपेंड 7 जुलाई को आई वेंट टू रमाडा होटल फॉर गिविंग माई इंटरव्यूज. मेरा कोई भी मन नहीं था, मन था, आई डोंट वांट कि नहीं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने सोचा था दिस इज़ गोना माई लास्ट अटैम्प्ट, इसके बाद मैं कोई भी अटैम्प्ट नहीं दूंगी. आई डोंट नो व्हाई, बस मेरा मन हट गया था बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स लाइक नीट. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सो आई थिंक आई विल कीप माई माइंड हर ओनली आफ्टर दैट. पर मुझसे उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी, ठीक है. मुझे था अगर इसमें नहीं हुआ देन आई विल नॉट कम अगैन फॉर दिस, ओके. कोई भी हो, कोई भी एयरलाइन हो, नहीं आऊँगी. बट व्हाट हैपेंड इज फर्स्ट राउंड तो लाइक यूजुअली मेरा हमेशा की तरह निकलता, तो मुझे कुछ भी नहीं था कि हाँ मेरा निकल गया और समथिंग. आई डिडंट नो द क्वेश्चंस राइट नाउ यार. इफ़ यू वांट द क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू रिमेंबर. और मैं कहीं इंट्रोडक्शन ही था फर्स्ट में मेरा, मे बी, आई एम सो सॉरी. हॉबीज़ पूछा था, हमेशा मुझसे वही पूछते. येस, it's about my hobby. If you guys want answers then I will give comment down below, so I will make another video on that, okay. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने आंसर दिया. उसके बाद जब हुआ तो उन्होंने बोला सेकेंड राउंड के लिए, तो BMI था, BMI में मेरा ऑल परफेक्ट था, तो BMI भी मेरा हो गया. उसके बाद थर्ड राउंड कम्युनिकेशन राउंड, उसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा वाई यू थिंक कि वुमेन्स आर लाइक इन एविएशन. कुछ तो था रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ही था इन एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है. सो आई हैव नो क्लू कि व्हाट टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक बिकॉज द टॉपिक वॉज वेरी ऑन द स्पॉट. और वी हैव नथिंग ना, वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू स्पीक ऑल्सो ना. वी आर सिटिंग हियर और अचानक से रैंडमली क्वेश्चन पूछ दिया तो हाउ कैन आई स्पीक फॉर सो. और ये भी नहीं है ना कि 1 मिनट का एक लाइन में आंसर दिए, तो यू हैव टू स्पीक फॉर कुछ लंबे टाइम के लिए है ना. सो दैट वॉट हैपन्स टू मी हैपेंड. उसके बाद क्या हुआ, आई स्पोक इन, ठीक है. मैं नहीं बोलूँगी मैंने अच्छा स्पोक किया, गंदा बोला, कुछ भी बोला, आई डिडंट नो एनीथिंग, ठीक है. आई स्पोक वट एवर आई फील लाइक, आई जस्ट बटर में बोलती गई जो भी मुझे लगा बोलना चाहिए. आई जस्ट पुट माई पॉइंट ऑफ व्यूज़, ठीक है. उसके बाद मेरे ग्रुप में 10 गर्ल्स को बुला रहे थे, तो उन्होंने बोला, सब ने आंसर्स दिए. आफ्टर दैट वॉट हैपेंड इज दैट फोर्थ राउंड, राइट. तो व्हाट हैपेंड, मेरे ही नाम से एक दूसरी लड़की थी, ठीक है. तो व्हेन दे कॉल मी आई वाज इन द वॉशरूम बिकॉज आई वाज रियली फीलिंग लाइक गोइंग होम ओनली. बस ऐसा था ना, एक बार खुद आप बता दो कि आप घर जाओ देन आई विल गो होम, ठीक है. बिकॉज ऐसे तो नहीं जा सकती थी ना. तो फिर मैं वॉशरूम में ही थी कुछ, बिकॉज मैं नहीं रह सकती थी यार, इतना जुकाम, इतना बुखार हो रखा था उस दिन मुझे.
तो मैं वॉशरूम में ही थी पूरे टाइम। उसके बाद थर्ड राउंड में मैं बैठी, मैंने उनसे पूछा फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया, एटलीस्ट अगर बोल रहे जाओ तो फिर आई कैन गो माई होम ना, क्योंकि तबियत बहुत खराब थी, मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। सो आई डायरेक्टली वेंट टू द HR एंड आई सेड मैम कैन यू प्लीज टेल आई हैव टू गो और आई हैव टू वेट। मैंने उनसे ये पूछा डायरेक्टली, ठीक है। उन्होंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, मैंने तो आपको पहले या टाइम में बुलाया था, व्हाट आर यू डूइंग दैट, ऐसे से बोला। तो आई सेड मैम आई डोंट नो, पर बोलती आप तो चले गए हो ना। मैंने बोला नो आई डिडंट गो। वो बोलती है आपके नाम से कोई और चला गया। तो आई वाज लाइक ओह, पर फिर भी मुझे लगा ठीक है ये चांस मेरा गया, ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ। मैंने बोला ठीक है मैम आई एम लीविंग। उसके बाद शी लाइक वेट वेट वेट, उन्होंने बोला यू गो। मैंने बोला क्यों, तो बोलती आपके नाम से कोई और लड़की गई थी, तो उसको मतलब ढूंढने में ही परेशानी हुई ना, उनको ढूंढना था रिज्यूम से, फिर उन्होंने कैसे भी किया क्या क्या आई रियली डोंट नो। उसके बाद आई वेंट इनसाइड, ठीक है, खुक्कू करके मैं साइड में बैठी थी और ऑलरेडी वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था। इट्स रियली बैड इंप्रेशन यार। मैं इतनी तेज़ मुझे बुखार था ना कि उनका भी डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। एंड यहाँ आई मैनेज्ड। उसके बाद आई वाज लाइक कि मज़े मज़े में मुझसे मतलब बस बात करनी है, लाइक ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लाइक प्योर नेचुरल कॉन्वर्जेशन, ठीक है। बस मैं मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ मुझे इस तरह में बोलना है कि मैं सिलेक्ट हो ही जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट आर योर हॉबीज़, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एंड व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ना, उस इंट्रोडक्शन में उन्होंने मुझे बहुत से क्रॉस क्वेश्चंस किए, ठीक है। दिस इज़ द ओनली। उसके बाद इतना ही इंट्रोडक्शन में ही बहुत से क्रॉस क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स की बारी आई, तो आई तो डिडंट थॉट बिकॉज ही आस्क्ड मी दैट आपके पापा, लाइक आई एक्सप्लेन ना माई फादर इज एन आर्मी, तो ही सेड व्हाट योर फादर, लाइक क्या रैंक है आपके पापा की एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई सेड आई रियली डोंट नो। तो ही लाइक व्हाट, आपके पापा हैं आपको नहीं पता? आई सेड नो आई डोंट नो। फिर मैं इतनी बेवकूफ़, मैं उनसे बोलती है सर आपसे पहले किसी और ने भी, लाइक इन दैट वे ओनली, ओके। आई सेड सर आपसे पहले किसी और ने भी पूछा था, तो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ही वॉज लाफिंग, आई वॉज ऑल्सो लाफिंग कि मैंने बोल के दी थी ना, रियलाइज काजल शिट मैन व्हाट यू डिड। मैं खुद ही मतलब कुछ भी, आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट यार नो। उसके बाद वो हंसने लगे। फिर आई थॉट कि इट्स लाइक आई वॉज लाइक नो टेंशन, ठीक है, कि इट्स रियली गुड। मतलब मेरे उनसे जो बात हुई ना वो बहुत अच्छी थी, तो मुझे वो अच्छा लगा, ठीक है। आई रियली एंजॉय टॉकिंग विथ हिम, ओके। उसके बाद व्हेन रिजल्ट केम ना, तो कुछ लड़कियाँ सिलेक्ट हुई फॉर PHT विच इज़ प्री हायरिंग ट्रेनिंग। उसके बाद we 4 of us got selected for direct, okay, direct selection हुआ 4 और 7 का। तो they took my name, I said what, तो मुझे सच में लिटरली आई वॉज शॉक्ड बिकॉज एट दैट डे आई वॉज फीलिंग लाइक क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। मैं बोली वॉट, फिर वो बोलती यू गाइज आर सिलेक्टेड, ठीक है। मैं बाहर है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि तो फीवर समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। देन आई वेंट दैट। उसके बाद मुझे कोई खुशी नहीं, लिटरली कोई खुशी नहीं हुई मुझे। उसके बाद जब मैं रास्ते में थी ना, तब थोड़ी सी तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक हुई, तो मैंने घर में कॉल करके बताया। उसके बाद आई वेंट होम, प्रसाद चढ़ाया, बस इतना ही हुआ था। इट्स लाइक उस दिन बुखार था ना, नहीं होता तो और अच्छा फील होता, बट स्टिल यार इट्स वेरी लाइक नाइसफुली, ओके। तो फॉर टिप्स आई विल से बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, हाँ। आई विल नॉट कंटिन्यू दिस वीडियो अगैन बिकॉज इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस पर्सनल बता दिया। और मैं टिप भी यही दूँगी गाइज, ऑलवेज ट्राई टू नो बात करो, एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनसे लाइक सच में कनेक्ट करने का कोशिश करोगे ना, आई एम डैम श्योर नो वन विल स्टॉप यू, ठीक है। एंड गो अगैन एंड अगैन फॉर योर इंटरव्यूज। दिस इज लाइक मेरा खुद का ऐसा है, मैं मन नहीं था पर मैं फिर गई ना, दैट इज़ द वाई आई एम हियर, दिस इज़ द ओनली रीजन ना दैट आई एम हियर ओनली, ओके। तो हाँ, बस यही बताना था। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, आई होप यू गाइज मेड इट वन डे, ओके। और ट्रेनिंग होगी फिर मज़े तो करने मिलते नहीं है। फर्स्ट वीक तो बहुत मज़े आते हैं, उसके बाद से पता चलता है कितना पढ़ना पड़ता है यार, तब पढ़ना पड़ता है। उसके बाद भी अब तो फ्लाइट्स भी कर रही हो तभी पढ़ना पड़ता है, रोज़ हर फ्लाइट में पढ़ के जाना पड़ता है यार। बट अभी का तो बहुत स्मूथ चल रहा है सब, होप चले। आफ्टर दैट, और इस मंथ लाइक दिस मंथ फर्स्ट मंथ फॉर फ्लाइंग ना, सो दिस मंथ आई हैव सो मैनी लाइक नॉट सो मैनी बट दुबई बैक, ठीक है, नॉट ले ओवर्स, दुबई बैक, बस दुबई से ही बैक करवाना है मुझे। इवन मैं फोर्थ सोलो फ्लाइट ना,
इवन गाइस माई फेवरेट वॉज रियली वेल, बहुत अच्छी गई. इफ़ यू गाइस मैं वॉन्ट ना कि फेवरेट एक्सपीरियंस देन आई विल शेयर इट, कमेंट कर देना, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो. बाय बाय, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. और हाँ, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो ना, फील फ्री टू कमेंट डाउन, क्योंकि घास यार ये भर मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, क्योंकि अब मैं सारे वीडियोस बनाऊंगी पक्का. ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय बाय.